morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I'm taking the lecture of 29th lecture of Material Science and Metallurgy. So, in the previous series of the lecture, we are discussing about the metallic materials, what and how the metallic materials properties, what is the metallic material classifications. We discussed in the previous lectures and how to recognize the metallic material by the spark test we can understand with the previous lecture. So in today's lecture we understand about the optical microscopy, optical microscopes, its basics, macro and micro examinations, and macro etching. So let's start the today's lecture. So optical microscopy was first created by the Robert Hooke in the 1665. So the two most important definitions about the optical microscope, which is about the resolutions and the magnifications. When we talking about the resolutions, so the most of the peoples are getting the query about the what is the meaning of the resolutions and what is the meaning of the magnifications. We most ofly creating some kind of the queries or some kind of the misunderstanding about the resolutions and the magnifications. The resolution, which is to be defined by the ability to see the two adjacent object separately. Magnification, which is uh, defined by the ratio of the image which is produced to actual dimensions of the samples. So these two are the most important definitions about the optical microscope. Here we can see that in the figure we can observe the optical microscope. Due to the corona pandemic situations, we are not visually observe the optical microscope at our lab, but I previously shared the one of the lab experiments of the optical microscope with you, which can strengthen your basic understanding about the optical microscope. If you still not watch that lab video, I think I'm suggesting you, so please at least see that video, and we will which is very helpful for to strengthening about the microscope understanding. A modern microscope with a mercury bulb, for the fluorescent microscopy, the microscope has a digital camera and it's attached to the computer. So how the microscope is working? An optical microscope, which is consist of the following, there is a two major basic function. The first, which is creating a magnified image of the specimen, which is having the observations optical system. जैसे हम लोग माइक्रोस्कोप नहीं, यानी ये चीज़ ऐसी कुछ चीज़ नहीं है जो मेरे को आपको डेप्थ में बतानी पड़े, राइट? आई थिंक सब ने जो स्टूडेंट्स हैं जिसने 8th 9th 10th ऑलमोस्ट सब पास आउट करके आए, तो 8th 9th 10th में हमने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप पढ़ा ही हुआ था. आप देखेंगे उसमें एक लेंस होता है, नीचे एक लाइट्स वैकेंसीज होती है. जब आप स्पेसिमेन रखोगे तो उसके ऊपर एक लाइट फोकसिंग बीम जनरेट होता है ड्यू टू द लाइटिंग सोर्सेज, राइट? अब उस लाइटिंग सोर्स से आप वो जो है वो इमेज के ऊपर फोकस करता है. अब जब हम लोग लेंस में से उस इमेज को देखने की, उस स्पेसिमेन को देखने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम वो जो है वो कुछ बेटर जूमिंग के साथ जो है वो बेटर मैग्निफिकेशंस के साथ, बेटर रेजोल्यूशन के साथ उस इमेज को देख सकते हैं. सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ द optical microscope. What is the use of the microscope? So extensively used in the microelectronics, nanophysics, biotechnology, pharmaceuticals research, mineralogy, and microbiology. The use of the medical diagnosis when dealing with the tissues or in smear test or free cell or the tissues fragments. And industrial use, the binocular microscopes are the common type of the microscope. In certain applications, a long working distance or a long focus microscopes, which is very much beneficial. An item may needs to be examined behind a window, or industrial subject is maybe hazardous to the objectives. Such optic resembles telescopes with close focus
capabilities. So this is all about the optical microscope and its workings. So the next topic of my today's lecture, which is about the sample preparations, because हमें जब भी माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो किसी भी मेटल का सैंपल अगर हमें ऑब्जर्व करना है, उसको उसका जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्जर्व करने के लिए, तो फिर हमें उस मेटल में से जो है एक सैंपल निकाल के उस सैंपल का एक प्रिपरेशन पूरी प्रोसेस करनी पड़ती है। उस पूरी प्रिपरेशन प्रोसेस के बाद जो है उसका मैक्रो और माइक्रो एग्जामिनेशंस जो है वो हो सकता है। अब ये पूरी प्रिपरेशंस के जो स्टेप्स है वो बेसिकली 5 स्टेप्स है। फर्स्ट विच इज़ दी सिलेक्शन, second which is mounting, third which is grinding, fourth which is polishing, and fifth which is the etching. Now we discuss these 5 steps in the details. So these are the steps of the sample preparations of the microscopic examinations. First, in selections की अगर बात करें तो वी हैव टू कट और स्लाइसिंग द सैंपल, उसको जो है वो हमें एक तरीके से कट करना पड़ेगा। आप कट करने के लिए, सैंपल कट करने के लिए जो है वो हेक्सो ब्लेड या फिर पावर हेक्सो का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है उसका माउंटिंग प्रोसेस आता है। तो माउंटिंग प्रोसेस करने के लिए जो है वो हॉट और कोल्ड माउंटिंग जो है वो 2 तरीके से उसका माउंटिंग हो सकता है। अब माउंटिंग जो है वो किस तरीके से कैसा माउंटिंग होगा वो डिपेंड करेगा कि आप उसका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करना चाहते हैं या फिर टीएम करना चाहते हैं, राइट। अब उसके ऊपर जैसे माउंटिंग हुए तो फिर उसके ऊपर रफ पॉलिशिंग या फिर एडिशनल स्लाइसिंग होता है। देन एक बार जब रफ पॉलिशिंग हो गया तो उसके बाद उसका फाइन पॉलिशिंग होता है, उसके ऊपर क्लीनिंग होता है, और क्लीनिंग के बाद जो है उसके ऊपर एक केमिकल ईचेंट जो है वो लगाया जाता है, जिसके हेल्प से जो है वो माइक्रोस्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर जो है वो क्रिस्टलोग्राफिक माइक्रोस्ट्रक्चर जो है वो डेवलप्ड होते हैं। और फिर जो है अगर माइक्रोस्कोप हमने ऑब्जर्व कर लिया तो उसके बाद उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको सैंपल को एज इट इज़ करने के लिए जो है एक मेटल कोटिंग जो है एक सरफेस लेयर उसके ऊपर चढ़ाया जाता है, जो लंबे समय तक उसको ऐसे ही कंडीशन में के अंदर प्रिजर्व रख सकता है। नाउ माउंटिंग। अब माउंटिंग चीज़ क्या होती है, यानी आपने जो सैंपल जो है वो एक मेटल के ऊपर से निकाला है, राइट। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड एक नॉर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जो है वो माउंटिंग जो है वो 2 तरीके से, एक हॉट कंडीशन के ऊपर माउंटिंग होता है और कोल्ड कंडीशन के ऊपर। आपका जो सैंपल है, आपने जिस मेटल स्ट्रिप को निकाला है तो उसकी साइज़ जो है वो 25 mm इन द लेंथ होनी चाहिए, राइट। या फिर जो है वो दूसरा जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो 32 mm, और तीसरा जो है वो 38 mm जो है उसका माउंटिंग का जो है वो डायमीटर होना चाहिए। उसके बीच जो है वो आपका स्ट्रिप जो है, अब माउंटिंग यानी एक जो माउंटिंग यानी होता है ना वो एक थर्मोप्लास्टिक, एक प्लास्टिक जो है वो एक जैसा ढक्कन जैसा नहीं होता, एक ढक्कन जैसा एक प्लास्टिक का एक सॉलिड पार्ट होता है, इसके ऊपर आपको मेटल स्ट्रिप को चिपका देना है, राइट। उसके अंदर उसको बिठा देना है, राइट। वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक हो सकता है, ये सेटिंग प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक होता है या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। अब इसके ऑप्शंस में जो है ये आपका वैक्स जो है, वैक्स के ऊपर भी जो है वो माउंटिंग किया जाता है। तो ये हो गया माउंटिंग। अब उसके बाद उसका ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग करने के लिए ग्राइंडिंग जो है वो बेसिकली जैसे माउंटिंग होएगा तो आप क्योंकि आप छोटी सी जो स्ट्रिप होगी 25 mm की, उसको आप लेंथ में 25 mm होगी, और जो इसका विड्थ हो रहेगा वो 5 to 6 mm रहेगा। तो उसको आप एक तरीके से उसके ऊपर उसको पकड़ के ग्राइंडिंग नहीं कर सकते। इसके लिए हमने पहले उसको माउंटिंग यानी आप उसको हैंडल करना, पकड़ना जो है वो ईजी रहेगा, ईजी हो गया है, राइट। अब जैसे ये चीज़ हो गई है तो उसके बाद उसके ऊपर ग्राइंडिंग जो है वो बेसिकली पहले जो है वो ग्राइंडिंग करने के लिए जो है वो उसकी जो पॉलिशिंग प्रोसेस है पूरी, वो ग्राइंडिंग करने के लिए वो सिंपल बेल्ट ग्राइंडिंग मशीन के ऊपर पूरा उसका ग्राइंडिंग होता है। अब बेल्ट ग्राइंडिंग मशीन्स जो है उसके ऊपर जो बेल्ट होता है वो उसके ऊपर एब्रेसिव पार्टिकल्स होता है। अब वो जो बेल्ट है वो एब्रेसिव पार्टिकल के साइज़ में आता है, 80, 100, 120, 140, इस तरीके से उसका ग्राइंडिंग जो है वो एब्रेसिव पार्टिकल की जो है वो साइज़ जो है वो माइक्रोन में रहती है, राइट। अब यहाँ पे आप जो है वो बेल्ट ग्राइंडर मशीन देख सकते हैं, और उसका जो बेल्ट है ये आपको
दिख रहा है, उसके ऊपर आपको सैंपल को टच करना है और उसी तरीके से जो है एक रफ़ ग्राइंडिंग उसका प्रोसेस होता है। अब उसके बाद जो है प्रोसेस जो है, जैसे आपका रफ़ ग्राइंडिंग होगा उसके ऊपर जो है वो रहेगा आपका स्मूथ ग्राइंडिंग। स्मूथ ग्राइंडिंग को करने के लिए जो है वो ज़्यादा जो है वो ग्रेड के जो है वो हमें पेपर, जो ग्राइंडिंग पेपर जो है वो हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे ग्राइंडिंग पेपर के ऊपर जैसे पॉलिशिंग हो गया, एकदम रफ़ पॉलिशिंग के बाद उसका जो है वो एकदम फाइन पॉलिशिंग ग्राइंडिंग हो जाएगा। उसके बाद जो रहेगा उसका स्टेप विच इज़ द पॉलिशिंग। अब पॉलिशिंग विच इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द विच इज़ इन्वॉल्व द एब्रेसिव, उसके ऊपर इसके अलग अलग जो है वो पॉलिशिंग पेपर्स जो है यहाँ पे होते हैं, जिसके अंदर सिलिकॉन पेपर यूज़ होता है मोस्ट ऑफली। तो उसके ऊपर सिलिकॉन पेपर जो है वो एक रोटेटिंग डिस्क के ऊपर चिपकाया जाता है और एकदम फाइन उसके ऊपर एब्रेसिव पाउडर्स रहता है। अब जैसे ही एक रफ़ ग्राइंडिंग किया हुआ जो है हमारा सैंपल जो है माउंट किया हुआ, उसके अब सिलिकॉन पेपर रोटेटिंग डिस्क के ऊपर रखेंगे। तो अब जैसे ही जो पहला स्टेज था वो ग्राइंडिंग था, ग्राइंडिंग के बाद बेल्ट ग्राइंडिंग आया, बेल्ट ग्राइंडिंग जैसे हो गया तो अब डिस्क ग्राइंडिंग, राइट। डिस्क पॉलिशिंग मशीन उसको बोलते हैं। तब डिस्क पॉलिशिंग मशीन के ऊपर उसको अब पॉलिश करना है। अब डिस्क पॉलिशिंग के ऊपर जैसे ही वो पॉलिश हो गया तो उसके बाद जो है उसको एब्रेशन के थोड़े थोड़े जो है वो स्क्रैचेस, एब्रेटिव पार्टिकल्स के हिसाब से जो है थोड़े थोड़े स्क्रैचेस अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर दिख सकते हैं। तो वो स्क्रैचेस को रिमूव करने के लिए जो पॉलिशिंग अब पॉलिशिंग होगा, तो वो पॉलिशिंग जो है नेक्स्ट पॉलिशिंग रहेगा वो जो है वो वेलवेट पेपर के ऊपर जो है पूरा पॉलिशिंग होता है। एक छोटा सा वेलवेट का क्लोथ होता है, उसके ऊपर जो है वो डायमंड का पेस्ट लगा के हमें पूरा पॉलिशिंग करना है। डायमंड पेस्ट जो है वो जैसे अपना टूथपेस्ट होता है ना, वैसे ही एक पेस्ट होता है, राइट। अब वो पेस्ट को यूज़ करके जो है वो हमें वाटर को कंटिन्यूसली फ्लो करना है। पेस्ट जो है वो हम वेलवेट के ऊपर लगा देंगे और उसके ऊपर हमें घिसना है। उस तरीके से उसको जो है वो 90 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री ऐसा रोटेट करके हमें उसके ऊपर जो है उसका पॉलिशिंग करना है, जिसके हिसाब से जो छोटे छोटे माइनर जो हेयर जैसे जो है, जैसे अपना बाल होता है इतने पतले पतले जो है वो एब्रेसिव के जो मार्क्स थे वो मार्क्स अब मिट जाएंगे। अब उसके बाद जो है वो माइक्रोस्ट्रक्चर अब पूरा जो है वो फिनिशिंग प्रोसेस हो गया। अब उसके बाद जो है वो प्रोसेस रहती है अपनी ईचिंग प्रोसेस। अब ईचिंग किसको बोलते हैं? तो ईचिंग जो है वो एक तरीके से केमिकल रीएजेंट्स है। अब जो सपोज़ आपका स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो स्टील जो है तो उसके ऊपर बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं नाइटल, राइट। नाइटल एक लिक्विड है, राइट, एक केमिकल है जो हम लोग उसके सरफेस के ऊपर लगाएंगे। उसके बाद उसको 5 या 10 मिनट के ऊपर जो है वो छोड़ देंगे। तो उसके बाद जो है उसके जो क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर अब उस चीज़ को जो है वो हम लोग माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे तो पूरा जो है उसका क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर हमें दिख सकता है। यानी ये जो है ईचंट जो है वो एक तरीके से ऐसा केमिकल रीएजेंट है जो मेटल के साथ रिएक्ट करके उसका स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप्ड करता है। अब उसके हिसाब से ईचंट के जो है वो हम लोग उसके ग्रेन साइज सेग्रेशंस उस तरीके से देख सकते हैं। ये ईचंट जो है बेसिकली 3 टाइप्स के होता है: केमिकल ईचिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक ईचिंग एंड हीट टिंटिंग। तो ईचिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने ईचंट अप्लाई किया तो यहाँ पे जो है वो आपको 3 फिगर्स दिख रही है। तो 3 फिगर्स के ऊपर जो है वो धीरे धीरे जो है वो ईचंट की वजह से जो है वो माइक्रोस्ट्रक्चर कैसे डेवलप्ड हो रहा है, ये चीज़ जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो जैसे ही ये पूरा माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलप्ड हो जाएगा तो आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। अब ये हो गया आपका केमिकल ईचिंग। तो केमिकल ईचिंग के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईचंट अप्लाई करने के बाद जैसे मैंने ईच विद दी 2% ऑफ दी 2% नाइटल, यानी आप 100 ml लेंगे ना तो उसमें 2 ml जो है वो नाइटल डालना है, बाकी का रहेगा आपका वाटर रहेगा, राइट, डिस्टिल वाटर रहेगा। तो जब वो माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलप होगा लो कार्बन स्टील का तो ये आपको दिख रहा है। फिर जैसे मैंने पिक्रेल यानी ईचंट विद दी 4% ऑफ दी पिक्रेल, इसी प्रपोर्शन के साथ आपको पिक्रेल से आप जैसे आपने ईचिंग किया तो ये जो है वो आपको माइक्रोस्ट्रक्चर लो कार्बन स्टील के दिख रहे हैं। अब थर्ड एग्जांपल है विच इज़ द ईचंट विद दी बरहाज रीएजेंट्स। अब बरहाज रीएजेंट से आप उसको ईच करेंगे, माइक्रो ईचिंग करेंगे
तो आपको इस तरीके के माइक्रोस्ट्रक्चर जो है वो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व हो गए। तो अब उसका लास्ट जो प्रोसेस रहता है विच इज़ द हीट टिंटिंग, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग सैंपल्स इन अ फर्नेस के अंदर उसको ऑक्सीडाइजिंग करना है। दिस प्रोसेस विच इज़ इंड्यूस द ऑक्सीडेशंस ऑफ द surface which is features at the different rates to reveal the various features. So the colorations of the surface which is take place at the different rate according to the reactions characteristics of the different elements. The observed interference color allow the differentiations of the fringes and the grains. Now the final steps जो है वो कौन सा रह जाएगा, जैसे ही आपको आपने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर पूरा माइक्रोस्ट्रक्चर उसको ऑब्जर्व करके उसको कैप्चर कर लिया, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रह जाएगा कि उसको आपको एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया, उसके बाद आपको सैंपल को वहाँ से लेके उसको जो है वो मीथेनॉल या फिर इथेनॉल या फिर डिस्टिल वाटर से जो आपको क्लीन कर देना है, राइट। 1 सेकेंड। जैसे ही ये चीज़ हो गई है तो आपकी, तो आपको उसको क्लीन कर देना है। जैसे वो क्लीन हो जाएगा पूरा सैंपल, तो क्लीन सैंपल जो है वो आपको वॉश करके फिर उसको एक जो अपना टिश्यू पेपर रहता है, तो टिश्यू पेपर के से पूरा क्लीन करके उसको ड्राई करके उसके अंदर जो है उसको कवर कर देना है और आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। वो हल्का सा भी जो है वो वेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मेटल सरफेस है वो अगर वो थोड़ा सा भी वेट होगा तो फिर वो कोरोड हो सकता है। यानी ये चीज़ जो है वहाँ पे सैंपल प्रिपरेशन का आपका स्टेप्स ख़त्म हो जाता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप्स है विच इज़ द व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो एग्जामिनेशन। सो we can discuss about the macro and micro examinations with the details. So माइक्रो एग्जामिनेशंस का जो एम बेसिकली, पहले हम लोग माइक्रो को देख रहे हैं। सो टू डिटरमाइन द केमिकल कंटेंट ऑफ द एलॉय, राइट। माइक्रो से हमें क्या पता चल सकता है, यानी केमिकल कंटेंट ऑफ द एलॉय का पता चल सकता है। टू डिस्कवर द माइक्रो डिफेक्ट्स, अगर मेटल के अंदर कोई डिफेक्ट्स है वो पता कर रही है तो फिर माइक्रो एग्जामिनेशन किया जा सकता है। टू रिवील द स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी जो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अगर हमें ऑब्जर्व करनी है तो फिर वो चीज़ जो है वो ऑब्जर्व इस तरीके से इस प्रोसेस से जो है वो ऑब्जर्व हो सकती है। माइक्रो एग्जामिनेशन से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द साइज एंड शेप ऑफ द क्रिस्टलाइन, आपका क्रिस्टल जो है उसकी साइज़ क्या है, उसका शेप क्या है, वो चीज़ अगर हमें ऑब्जर्व करनी है, वो चीज़ हमें मेज़र करनी है, तो फिर ये माइक्रो एग्जामिनेशंस की हेल्प से हम उस चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। टू इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ द हीट ट्रीटमेंट, किस तरीके से उसके ऊपर हीट ट्रीटमेंट हुई है वो अगर चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी है तो फिर इस माइक्रो एग्जामिनेशन से ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब उसके बाद जो रहता है वो नेक्स्ट पार्ट विच इज़ दी मैक्रो एग्जामिनेशन। तो मैक्रो एग्जामिनेशन क्या चीज़ है, द मैक्रो एग्जामिनेशन विच इज़ कवर एज टू रिवील द साइज एंड फॉर्म एंड द अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टल्स इन द कास्ट मेटल, एक कास्ट की हुई मेटल के अंदर किस तरीके से उसकी क्रिस्टल की अरेंजमेंट है वो अगर हमें देखनी है तो फिर ये मैक्रो एग्जामिनेशन से हम देख सकते हैं। यानी वो मैक्रो यानी मोटा मोटा, यानी मैं आपको एक तरीके से बताऊँ कि मैक्रो के अंदर मैक्सिमम जो है वो हम लोग 10x तक जूम कर सकते हैं। और मैं माइक्रो की बात करूँ तो माइक्रो के अंदर जो है वो हम 1000x तक हम जूम किसी भी इमेज को कर सकते हैं। तो 10x तक तो लिमिटेशंस हो गए, उसका सिर्फ क्रिस्टलोग्राफिक अरेंजमेंट, क्रिस्टल किस तरीके से अरेंज है वही चीज़ हमें पता चल सकती है। टू रिवील द क्रैक्स विच इज़ अपीयरिंग ड्यूरिंग द सर्टेन फैब्रिकेशन प्रोसेस, अगर किसी प्रोसेस के अंदर ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन प्रोसेस कोई क्रैक जो है वो सरफेस के ऊपर है तो फिर हम मैक्रो से वो फाइंड आउट कर सकते हैं। टू रिवील द फाइबर्स इन द डिफॉर्म मेटल, किसी तरीके से कोई फाइबर्स है तो फिर वो हम पता कर सकते हैं। टू रिवील द श्रिंकेज पोरोसिटीज इन द गैस कैविटीज़, किसी भी कोई मेटल का श्रिंकेज हुआ है
पोरोसिटी है मेटल के अंदर, तो वो चीज़ जो है वो हम पता चल सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो मैक्रो एग्जामिनेशन से हम पता कर सकते हैं। टू फाइंड द कोजेस ऑफ द फेलियर ऑफ द कंपोनेंट्स, टू फाइंड द कोजेस ऑफ द फेलियर ऑफ द कंपोनेंट्स, इस तरीके से उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मैक्रो एंड माइक्रो एग्जामिनेशन। ये जो चीज़ आपके सामने अभी दिख रही है विच इज़ द वन ऑफ द एग्जाम्पल फिगर ऑफ द मैक्रो एग्जामिनेशन। मैक्रो एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं तो पूरा इसके ऊपर ये जो है एग्जाम्पल है जिसके ऊपर पूरा एक प्रोसेस किया गया है। एक मेटल, दो मेटल को हमने वी ग्रू से जोड़ा हुआ है, वेल्ड किया हुआ है। वेल्ड के बाद जो है उसके ऊपर पूरा सैंपल प्रिपरेशन किया गया है। सैंपल प्रिपरेशन करने के बाद उसके ऊपर जैसे ही हमने मैक्रो ईचेंट जो है अप्लाई किया, तो यहाँ पे आपको एक जॉइनिंग कन्फिग्रेशंस दोनों का एग्जैक्ट तरीके से दिख रहा है वी ग्रू का, राइट। और जो दोनों के वी ग्रू है तो वी ग्रू में किस तरीके से पूरा किस तरीके से पूरा वी ग्रू जो है वो किस तरीके से वी ग्रू का पूरा अरेंजमेंट जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन टूडेज लेक्चर्स ऑफ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, then the steps of the sample preparations for to observe the microscopic examinations and the macroscopic examinations. What is the difference between the microscopic examinations and macroscopic examinations? And last, this is the sample example of the macroscopic examination. So thank you so much for watching this video. This is all about the microscopic examinations. In tomorrow's lecture chapter furthermore stage. So please write your enrollment number after watching this video. Thank you so much for patiently watching this video. Thank you.